Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing MCQ of wave optics. We will discuss the MCQ only based on the interference and diffraction. So right now we are going to skip the MCQ corresponding to the resolving power of the telescope, microscope and polarization. Only interference and diffraction we're going to consider. So you can see the MCQ number 1 to onwards in your screen. Am I right, friends? Yes or no? Yes, sir. Okay. So MCQ number 1, 2, 3 and 4. Yeah, okay. Uh, 1 and 2 are based on the polarization. Let's come to the question number 3. So question number 3 is to determine the position of the point-like objects precisely. Blank light should be used. कोई भी point-like object का अगर position आपको precisely आपको if you want to determine the position of any point-like object, then you should use which kind of light? That is a question. So friends, okay. So whenever you want to decide, you want to determine the position of the point-like object, you have to see it from the optical. You have to see it from the optical instrument like a microscope and telescope. So when you observe the object from the telescopic microscope, uh, diffraction pattern is formed because there will be a slit. Lens behave like a slit. So because of that diffraction pattern, what happened? Because of the diffraction pattern, what happened? The image will be something like this. Image जो होता है वो इस टाइप का हो जाता है. तो because of this diffraction pattern आपका image कुछ ऐसा हो जाता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका जो इमेज है ना वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, मतलब ऐसा वाइड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. तो उसका जो इमेज है वो प्रिसाइज नहीं रहेगा. तो उसको प्रिसाइज करने के लिए आपका डिफ्रैक्शन का जितना इफेक्ट कम होना वो जरूरी है. तो आपको डिफ्रैक्शन कम करना है टू डिटरमाइन दी position of a point like object precisely. We have to minimize the effect of diffraction. तो डिफ्रैक्शन जितना हो सके इतना कम करना पड़ेगा. एंड फ्रेंड्स, शायद आपको पता होगा कि डिफ्रैक्शन फिनोमिनन जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो आपको पता होगा कि डिफ्रैक्शन फिनोमिनन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है भैया? तो लैम्बडा बाई ए रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इफ यू वांट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर आपको डिफ्रैक्शन का इफेक्ट मिनिमाइज करना है तो आपको लैम्बडा भी मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो नाउ टेल मी फ्रेंड्स, विच काइंड ऑफ वेव्स वी शुड यूज टू डिटरमाइन द position of the point like object precisely. But Short, short wavelength. very good, short wavelength should be the answer. Right. Fine. Question number 4 is based on the telescope. Question number 5 is based on the polarization. Question number 6 is based on the telescope. Question number 7. In a Fraunhofer diffraction by the single slit, the width of a slit is a 0.01 centimeter. The wavelength of the light is something. Okay. So friends, here it is mentioned in the Fraunhofer diffraction, it is mentioned that your slit width is a 0.01 centimeter. Your lambda is equals to 6,000 angstrom. And we want to find the angular
डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मैक्सिमम। मुझे है ना सेकंड मैक्सिमम का एंगुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कोई है माइका लाल जिसको पता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन? किसी को मैक्सिमा का कंडीशन पता है? 2n+1 lambda by 2. वेरी गुड, बट किसके इक्वल्स टू? यू हैड told 2n plus 1 lambda by 2. It's true, but is equals to what? No, 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 no. In the diffraction, it was Second maxima. no. It was a sin theta. हाँ सर हाँ. A sin theta was 2n plus 1 lambda by 2, and a sin theta was a n lambda. So these are the condition for the maximas, and n lambda was the condition for the minima. तो यहाँ पे ये आपका मैक्सिमा का कंडीशन है। बट इफ यू डील विद द सेकंड मैक्सिमा तो आपको n का वैल्यू 2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा भैया? 2 2 4 plus 1 5 lambda by 2. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो आपका ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 lambda by 2a. But as you know, sin theta is approximately theta, as a theta is very small in the diffraction, and in the case of interference generally these angles are very small. So we can say that sin theta is approximately theta, that is we wants to find actually, and that is equals to 5 lambda by 2a. 5 lambda का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 into 10 raised to minus 7 by 2, and the slit width is a 0.01 centimeter, that is a 10 raised to minus 4 meter. तो ये आपका हो जाएगा 6 30 30 डिवाइड 15 मिलेगा, और 10 raised to minus 3 बचेगा। तो इट विल बी 0.015 रेडियन। सो दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये आपका सेकंड मैक्सिमा का एंगल मिल गया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes sir. ओके, देखो अब जो है ना, अब जो क्वेश्चन मैं कराने जाने वाला हूँ दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट्स टू टेल यू सम न्यू थिंग। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। It's new and it's important for the competitive examinations as well as for the good set kind of examination. Please give the concentration. देखो ये आपका है ना स्क्रीन है, एंड यहाँ पे आपका एक सोर्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे S1 और S2 सोर्स में से जो वेव्स निकल रहे हैं वो यहाँ पे एक साथ मिलेंगे। क्यों एक साथ मिलेंगे? एक साथ क्यों मिलेंगे? बिकॉज दोनों का जो पाथ है वो कैसा है? मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों का जो पाथ है वेव्स 1 एंड वेव्स 2 का, दोनों का पाथ कितना है? सेम। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना रहेगा भैया? 0। सही बात है। तो यहाँ पे आपका जो पाथ डिफरेंस है ना वो 0 हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स? सो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा 0। एज अ पाथ डिफरेंस इज 0, which fringe will be produced here? Central fringe. Very good, very good. But more precisely I should say central bright fringe. Am I right friends? Yes sir. Because zero path difference जो है ना वो constructive interference के regarding है, n lambda का follow, it is following the condition for the constructive interference n lambda. But अब क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना।
अब है ना, वही दो सोर्सेस है, but in the path of any of this ray, any of this wave, now I had placed in the path of any of the two source, I had placed a glass slab. तो मुझे सोच के बताओ कि क्या आप दोनों रेज एक साथ यहाँ पे पहुंचेंगे? नो सर। नो, बिकॉज नो सर। वाला जो रे है ना, उसके पाथ में मैंने एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा फॉर मोमेंटरीली। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो मतलब दोनों अब एक साथ यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नाउ दिस इज नॉट द पॉइंट। यहाँ पे अब जो ऑप्टिकल पाथ, फिजिकल पाथ तो सेम ही दिख रहा है, बट ऑप्टिक हमको ऑलवेज ऑप्टिकल देखना होता है, दोनों साथ में पहुंचते कि नहीं वो देखना होता है। फिजिकली जो है वो देखना नहीं होता है आपको। यहाँ पे अभी भी फिजिकल तो पाथ सेम ही दिख रहा है आपको, बट देयर ऑप्टिकल पाथ्स आर नॉट सेम। So it's at this point I cannot say that the path difference is zero, ऐसा नहीं कह सकता मैं अभी। तो मतलब अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज फॉर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज फॉर्म नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि अभी सेंट्रल फ्रिंज का लोकेशन मुझे कहाँ पे मिलेगा? ये स्क्रीन है, तो मुझे थोड़ा सोच के बताना कि सेंट्रल फ्रिंज का लोकेशन कहाँ पे मिलेगा। थोड़ा नीचे। एक एक चीज तो कंफर्म्ड है कि वो जहाँ पे ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट, वहां पे तो सेंट्रल फ्रिंज नहीं मिलेगा, बिकॉज राइट नाउ both the ray will not meet simultaneously, they are not reaching simultaneously at that point, so their optical path will not be remain same, and because of that path difference will not be zero. So मुझे ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाहिए कि जहां पे दोनों साथ में पहुंचे, जहां पे पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए। तो अब मुझे सोच के बताओ कि ऐसा पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा? तो वैसे तो नहीं मिलेगा। थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर? कौन बोला? विश्वास। विश्वास गॉट द राइट आंसर। आपको अभी ऐसा जो पॉइंट मिलेगा ना, वो थोड़ा ऊपर मिलेगा। क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज કેમ કે S2 फास्ट ट्रैवल कर से हाँ, मुझे ऐसा पॉइंट सोचना पड़ेगा कि जहां पे S1 को कम ट्रैवल करना पड़े एंड S2 को ज्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों साथ में वहां पे पहुंच जाए। बिकॉज S1 का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें थोड़ा देर के लिए वो थोड़ा स्लो होता है, तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा कम पाथ दे देते हैं। वो थोड़ा स्लो हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा कम पाथ दे देते हैं। S2 स्लो नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा पाथ दे देते हैं। तो अब ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों वहां पे साथ में पहुंचे। क्या ये चीज आपको, ये लॉजिक आपको समझ में आया? यस सर। तो अब ये जो पॉइंट है ना, वहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ सेम है उसका। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? सेंट्रल सेंट्रल फ्रिंज। फ्रिंज। तो कैन आई से दिस विल बी द शिफ्टिंग ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। ये जो है दैट इज द, कैन आई से दिस, यहाँ पे पहले सेंट्रल फ्रिंज पहले यहाँ पे था। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स नाउ? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो पहले जो है ना, वो सेंट्रल फ्रिंज जो था ना, वो पहले यहाँ पे था। तो अभी अगर हम कोई एक सोर्स के सामने, कोई एक स्लिट के सामने अगर हम कोई ग्लास स्लैब रखते हैं, तो ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन उसके अंदर जितने भी पैटर्न है पूरा, नॉट ओनली द सेंट्रल मैक्सिमम, द होल पैटर्न विल बी शिफ्टेड। तो पूरा जो पैटर्न है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, नॉट ओनली द सेंट्रल फ्रिंज बट होल पैटर्न, पूरा जो पैटर्न है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये जो शिफ्टिंग है ना वो एक्स है।
ये शिफ्टिंग जो है ना उसको x अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी जो मैं आपको फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, अभी जो मैं फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ वो प्रूव तो हो सकता है, उसके लिए आधा घंटे का टाइम लगेगा, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। So the thing is, when we place any glass slab, it may be any, it is not necessary to be a glass, it may be any transparent material in front of any slit. The whole pattern on a screen will get shifted. पूरा पैटर्न जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। Let whole pattern is shifted by x distance. Then अगर पूरा जो पैटर्न है वो x डिस्टेंस जितना शिफ्ट कर रहा है, then width of that ग्लास स्लैब, तो उसका जो थिकनेस है, ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है ना, उसका ये शॉर्टकट है, पाथ डिफरेंस अपॉन ईटा -1। ये उसका स्लैब, ये उसका शॉर्टकट है। अब पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, तो वो आपको पता है कि भाई अगर शिफ्टिंग x लोकेशन के लिए पाथ डिफरेंस आपको पता होता है x स्मॉल d बाई कैपिटल D अपॉन ईटा -1। सो दिस इज अ पाथ डिफरेंस। तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है कि अगर पूरा पैटर्न x जितना शिफ्ट हो रहा है, अगर पूरा पैटर्न x जितना शिफ्ट हो रहा है, तो उसका जो पाथ डिफरेंस है ना वो x d बाई डी होता है। वो थ्योरेटिकली हमने प्रूव किया हुआ है। और यहाँ पे n ईटा क्या है भैया, तो इन दिस फॉर्मूला व्हाट इज ईटा, वेयर ईटा इज अ Index of glass slab. एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ स्लैब। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका प्रूफ मैं दे सकता हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। प्रूफ याद रहे ना रहे, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलो मान लो कि कोई आपको ऐसा बता रहा है कि भाई सेंट्रल फ्रिंज है ना, उसके बदले कोई ब्राइट फ्रिंज डेवलप हो रहा है। सेंट्रल फ्रिंज के जगह पे कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज ही डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सेंट्रल फ्रिंज के जगह पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई और ब्राइट फ्रिंज जनरेट हो रहा है। तो वो ब्राइट फ्रिंज ही जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पार्ट डिफरेंस का कंडीशन एन लैम्डा सेटिस्फाई होगा। तो इफ योर central fringe remains bright, मतलब अगर वो ब्राइट ही रहती है, तो वो ब्राइट ही रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जगह पे कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज डेवलप होगा, बिकॉज सेंट्रल फ्रिंज तो शिफ्ट होने वाला ही है। और सो सेंट्रल फ्रिंज की जगह पे सेंटर तो होगा ही नहीं, बट कोई और ब्राइट होगा। तो इसका मतलब कि तो ये जो थिकनेस है स्लैब का, तो दैट कैन बी रिटन एज एन लैम्डा अपॉन ईटा -1, वेयर एन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3, बिकॉज 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज सेंट्रल फ्रिंज के बदले सेंट्रल तो आ ही नहीं सकता।
तो पाथ डिफरेंस के बदले आप n लैम्डा अपॉन ईटा माइनस 1 कर सकते हो। बट अगर ऐसा दिया है कि भाई कोई एक के पाथ में हम स्लैब को प्लेस करते हैं एंड ऐसा दिया है कि हमारा जो सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज जो है दैट बिकेम अ डार्क, अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब ऐसा हुआ कि तो फिर पाथ डिफरेंस क्या लिखना पड़ेगा हमको? सो पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, अब ये जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लेट ऑफ थिकनेस t and refractive index 1.5 is placed in the passage of one ray in Young's double slit experiment। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि भाई कोई एक रे के पाथ में एक स्लैब रखा हुआ है, एक प्लेट रखी हुई है। तो आप इस टाइप के whenever this kind of sentence is written without any thinking you can apply that shortcut। जैसे ही ये लिखा हुआ है तो आप क्या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो? Shortcut is thickness of a slab or plate। यहाँ पे plate word use किया हुआ है, तो we'll also use the same word, that is the thickness of a plate, and that can be given by what is the basic formula? Path difference upon eta minus 1। तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि द सेंट्रल फ्रिंज इज रिमेन्स ब्राइट, तो ब्राइट ही रहती है। तो उसका मतलब कि मुझे पार्ट डिफरेंस के बदले क्या लिखना चाहिए? इट इज रिमेनिंग ब्राइट। ब्राइट का मतलब कि वहां पे कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज ही डेवलप हो रही है। तो इसका मतलब कि पार्ट डिफरेंस मुझे क्या लेना चाहिए? एन लैम्डा अपॉन ईटा माइनस 1। चलो यहाँ तक समझ में आया भैया? फ्रेंड्स थोड़ा इंटरेक्शन करो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। Yes, sir. ओके चलो, एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो नहीं लिख सकते बिकॉज सेंट्रल फ्रिंज की जगह पे सेंट्रल तो आएगा ही नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो पैटर्न में कुछ ना कुछ तो शिफ्टिंग होगा ही होगा। तो सेंट्रल के बदले सेंट्रल तो आएगा ही नहीं, उसके बदले कोई ना कोई ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज ही आएगा, मतलब एन में भी 1 2 3। बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मिनिमम थिकनेस, आपको मिनिमम थिकनेस करना है। तो अगर आपको ये थिकनेस मिनिमम सोचना है तो फिर एन का कौन सा वैल्यू आपको लेना पड़ेगा? 1. तो यू हैव टू टेक द 1 लैम्डा अपॉन ईटा माइनस 1। तो अभी आपका जो थिकनेस हो जाएगा दैट विल बी अ लैम्डा। ईटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 लैम्डा आएगा। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, ये 16th इज बेस्ड ऑन द सेम ट्रैक। ये 16th क्वेश्चन वही ट्रैक पे है, थोड़ा सोचो भैया। देखो क्या लिखा है, इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ अ ट्रांसपेरेंट थिन शीट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बोथ द दैट इज 2 थिन स्लिट्स। मतलब क्या दिया हुआ है कि दोनों के पाथ में, मतलब S1 एंड S2 दोनों के पाथ में मैंने वो प्लेट को रखा हुआ है। तो जो ऊपर का जो प्लेट है, देखो यहाँ पे थ्योरी में कंसेप्ट में देखो, तो ये जो ऊपर अगर ये जो यहाँ पे अगर आपने रखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है आप क्या आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. yes sir, ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे जो स्लिट है, यहाँ पे जो प्लेट है वो क्या करने का ट्राई करेगा? पैटर्न को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का ट्राई करेगा। बट अगर नीचे भी अगर आप रखते हो कोई स्लैब को नीचे भी रखते हो तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? नीचे करने का. नीचे करने का। नीचे करने का। देखो अगर सोचो कि ऊपर का शिफ्टिंग और नीचे का शिफ्टिंग दोनों इक्वलाइज हो जाए तो फिर वो सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे रहेगा? वही का वही. जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे। तो जहाँ पे होना चाहिए वहां पे ही रहेगा। तो वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे वही दिया हुआ है। क्या दिया, ध्यान से देखो। इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इन द ट्रांसपेरेंट थिन शीट्स are placed in front of 2 thin slits such that the central bright fringe remains at the same position।
मतलब वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि ऊपर का शिफ्टिंग और नीचे का शिफ्टिंग कितना कैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंडीशन डिराइव करना है। तो पहले एक काम करते हैं, लिखते हैं for plate 1 T1 is equals to, can I say x1 d by d upon eta 1 minus 1। तो x1 को अगर सब जगह इक्वेशन आप बनाते हो तो इट विल बी अ T1 इंटू eta 1 minus 1 d by d। चलो बराबर है फ्रेंड्स। यस एंड सिमिलरली, सर। हाँ बोलो हाँ बराबर, नहीं बराबर, बोलो बोलो। नहीं कुछ। 2 is equals to, can I say x2 d by d upon eta 2 minus 1। तो मेकिंग x2 सब जगह इक्वेशन, सो इट इज अ t2 eta 2 minus 1 into d by d, ऐसा होगा फ्रेंड्स। यस सर। बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि सेंट्रल फ्रिंज, द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स द सेम। सेंट्रल फ्रिंज का लोकेशन सेम है, उसका मतलब क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। एग्जैक्टली ऊपर का शिफ्टिंग और नीचे का शिफ्टिंग सेम होगा। एज अ सेंट्रल फ्रिंज remain at a same location, तो मतलब ये होगा कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा। तो मतलब ये होगा कि t1 इंटू इटा 1 माइनस 1 कैपिटल d बाई डी इज इक्वल्स टू t2 इंटू इटा 2 माइनस 1 कैपिटल d बाई डी। कैपिटल d बाई डी दोनों जगह से कैंसिल, तो आपका हो जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू इटा 2 माइनस 1 अपॉन इटा 1 माइनस 1। तो दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया? Yes. ओके फाइन। तो सर हाँ बोलो। सर ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिकल पाथ का मतलब टाइम, टाइम क्या है, टाइम के साथ जो कनेक्शन होता है उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं, एंड जियोमेट्री के साथ जो कनेक्शन होता है वो फिजिकल पाथ है। बट ऑलवेज रिमेंबर ऑप्टिकल पाथ्स आर इंपॉर्टेंट, फिजिकल पाथ का कोई मतलब नहीं है। टाइम मतलब दोनों साथ में पहुंचते कि नहीं वो जरूरी है। तो जैसे अगर कोई स्लैब नहीं रखा हुआ है तो फिजिकल पाथ या ऑप्टिकल पाथ सेम ही हो जाएगा। मतलब ये अगर ये टाइप का सिचुएशन है तो दोनों के देखो फिजिकल पाथ भी सेम है और दोनों साथ में ही पहुंचेंगे, तो उसके ऑप्टिकल पाथ भी सेम ही रहेंगे। बट अगर कहीं पे हमने स्लैब डाला हुआ है तो देखो अभी पाथ तो सेम ही दिख रहा है आपको, फिजिकली तो वो सेम ही पाथ दिख रहा है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? वो सेम नहीं रहेगा। मतलब क्यों नहीं रहेगा? नहीं। तो साथ में नहीं पहुंचेगा। इज इट क्लियर? मतलब जहां पे साथ में पहुंचते हैं ना तो उसका ऑप्टिकल पाथ सेम होगा, ऐसा कह सकते हैं। और फिजिकली जो पाथ सेम दिख रहा है उसको फिजिकल सेम पाथ बोलेंगे। इज इट क्लियर? बट इंटरफेरेंस में आज यस सर। आपको पहली बार पता चला, आज पहली बार आपको पता चला कि अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था ना कि ये कोई एक रे के बीच में कुछ डालना है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो अभी ऑप्टिकल पाथ एंड फिजिकल पाथ अब तक तो क्या था, सेम ही था। बट आज पहली बार पता चला कि इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एटसेट्रा में आपका फिजिकल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका ऑप्टिकल पाथ होना सेम होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अ कंडीशन। इज दैट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, उसके बाद हाँ ये अनपोलराइजेशन पोलराइजेशन है, मतलब पोलराइजेशन बाकी है। यंग्स एक्सपेरिमेंट होगा 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 यंग्स एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स ओके, क्या लिखा है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, मतलब स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, स्मॉल डी इज अ 0.4 सेंटीमीटर।
एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, मतलब कैपिटल डी, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपका जो वेवलेंथ है वो 5 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर है। तो क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, फोर्थ डार्क का। चलो पहली तो बात यह है कि डार्क फ्रिंज के बारे में है, तो वी शुड अप्लाई द -1 λ/2 कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कौन सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा पहले तो, डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन मुझे अप्लाई करके बताओ। डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कौन सा है? 2n-1 λ/2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और पाथ डिफरेंस का तो फॉर्मूला हमेशा से पता है कि x/d होता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है कि फोर्थ डार्क की बात है, तो n इज इक्वल टू आपको 4 लिखना है, तो x/d/d, n के बदले 4 लिख दो, 4 2 8 -1 7 λ/2। तो आपको x फाइंड करना है ना, आपको वो लोकेशन, उसका सेंट्रल फ्रिंज से उसका लोकेशन, मतलब आपको x फाइंड करना है स्क्रीन पे। तो x का वैल्यू कितना रहेगा भैया? 7/2 लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। लैम्बडा जो है ना वो 5 इंटू 10⁻⁻⁷ है, कैपिटल D जो है वो 1 है, स्मॉल d जो है ना वो 0.4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो ये फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कुछ मिलेगा आपको, कर लेना आप कैलकुलेशन, 35 डिवाइड बाई 8, 35 35 4 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 4.37 10⁻⁻⁴ आपका रहेगा मीटर में, 10⁻² सेंटीमीटर में रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Is it understood, friend? Is it understood, friend? Yes sir। Okay. चलो, diffraction pattern is formed by the red light. Now, if the red light is replaced by the blue light, then what happened? पहले हमने रेड कलर से पूरा एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन का, अब है ना रेड कलर के बदले हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ब्लू कलर के साथ कर रहे हैं। अब क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। Now we are using a blue color in place of a red color. Then what is going to be happen in the diffraction pattern? क्या होगा, चलो सोचो क्या होगा। आपको पता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? wavelength, λ। वेरी गुड। ऑप्शन बी। डिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बाई डी रेशियो। तो जितना वेवलेंथ आपका ज्यादा होगा उतना आपको डिफ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, ब्रॉडनेस ज्यादा मिलेगा। आपको पता है कि विबग्योर तो पहले रेड कलर था और उसको मैंने कर दिया ब्लू कलर। वैसे आप वायोलेट से रेड जाते हो तो आपका लैम्बडा इंक्रीज होता है, बट यू आर शिफ्टेड फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो आपने क्या किया, लैम्बडा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? decrease, या जस्ट डिक्रीज द लैम्बडा। तो लैम्बडा डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ऐसा होगा कि भाई आपका अगर लैम्बडा डिक्रीज होगा तो आपका जो पैटर्न ब्रॉडनेस जो है, ब्रॉडनेस ऑफ पैटर्न दैट इज अ डिफ्रैक्शन, वो भी डिक्रीज होगा। तो फिर देखो, अब सोच के बताओ तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? तो फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मैक्सिमा एंड मिनिमा is going to be narrower and more crowded. Is that clear, friends? yes sir, Okay, fine. Okay, 12th is also on the same track. A distance between the two slits in the Young's experiment is a 0.1 millimeter and distance from the slit to the screen is 100 centimeter.
wavelength is also given, then width of the fringe, we wants to find the width of the fringe. देखो यहाँ पे थोड़ा आपको मेरी बात सुनना है। ऐसा है कि जो ओल्डर टेक्स्ट बुक था ना, उसमें स्लिट विड्थ का फॉर्मूला गलत बताया था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला गलत बताया था। तो विड्थ ऑफ अ फ्रिंज आपको क्या पता है, बताओ मुझे बेटा। lambda d by d. या वेरी गुड, लैम्डा डी बाई डी। जो पुराना टेक्स्ट बुक था ना, उसमें लैम्डा डी बाई 2d दिया था। तो ये जो मेरा नोट्स है ना, दैट इज करस्पॉन्डेड टू द ओल्डर बुक। तो ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, वहाँ पे लैम्डा डी बाई 2d लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, वहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा मेरे नोट्स के अंदर। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो ओल्डर सिलेबस में लैम्डा डी बाई 2d लिखा होता था, वो अभी आपको कैंसिल करना है, लैम्डा डी बाई डी ही लिखना है आपको। तो लैम्डा का वैल्यू आपके पास है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5×10⁻⁷। कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर है, स्मॉल डी जो है वो 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁴ मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 5×10⁻³ मीटर। तो 5 millimeter is the answer. So as per the older content, it was a 2.5, but it is a wrong answer. The right answer is a 5 millimeter. तो यहाँ पे आपके बुक के अंदर 2.5 आंसर लिखा होगा। अगर आपके पास बुक होता, अगर आपके पास नहीं ये नोट्स है तो करेक्शन करना पड़ेगा। वहाँ पे 2.5 आंसर दिया होगा, बट एक्चुअली आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं या कहीं पे भी JEE कहीं पे भी अगर पूछते हैं तो आपको 2.5 नहीं लिखना है, 5 आपका ये आंसर यहाँ पे रहेगा, बिकॉज द एक्चुअल फॉर्मूला राइट नाउ इज लैम्डा डी बाई डी, नॉट 2d। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो दिस इज व्हाट इज योर फ्रिंज विड्थ। चलो अब क्या लिखा है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंट्रल मैक्सिमम का एंगुलर स्प्रेड डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो हमको ये पता है, चलो किसी को याद है भैया एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा? लास्ट लेक्चर में ही डिराइव किया था, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, किसी को याद है? दैट वाज अ 2 लैम्डा बाई। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है भैया। फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है ना, आफ्टर ऑल वो c बाई लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। क्या वो विड्थ ऑफ अ स्लिट के ऊपर डिपेंडेंट? यस, विड्थ ऑफ द स्लिट भी है, वहां पे पिक्चर में ए भी है, बट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट टू द सोर्स, मतलब कैपिटल डी नहीं है। देखो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सोर्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड सोर्स, बिकॉज स्लिट इटसेल्फ इज अ सोर्स, स्लिट इटसेल्फ इज अ सोर्स। तो स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है डी, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके, फोर्टीन्थ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या लिखा है, अ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज 0.2 millimeter. Wavelength of the light is given. Angular position of third bright fringe, the central fringe. Angular position of the third bright fringe. चलो थोड़ा सोचने लायक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंटरफेरेंस का टॉपिक है या डिफरेंशियल का है? ये इंटरफेरेंस है या Interference. इंटरफेरेंस? और दूसरी बात, यहाँ पे डार्क फ्रिंज का बात किया हुआ है या ब्राइट फ्रिंज का बात किया हुआ है? Bright. ब्राइट का। तो फिर अब मुझे कंडीशन कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। And lambda. वेरी गुड। बट पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन लैम्डा के बदले मुझे लिखना चाहिए 3 लैम्डा। तो फिर फ्रेंड्स एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा?
3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बट ये क्या मिलेगा मुझे, ये जो है ना, ये जो मुझे मिलेगा, ओके, तो ये मुझे उसके सेंट्रल फ्रिंज से ये थर्ड का लोकेशन मुझे मिलेगा। ये सपोज कि ये डिस्टेंस पे ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज लोकेट हो रहा है, बट मुझे एक्चुअल में एंगल फाइंड करना है। आई वांट्स टू फाइंड द एंगल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब आपको पता है कि ये तो डिस्टेंस डी है, तो अब मुझे सोच के बताओ कि एंगुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना। देखो क्या लिखा है, एंगुलर पोजीशन। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा मुझे फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है वो आपका एक्स है, रेडियस आपका कैपिटल डी है। तो ये जो भी आपको एक्स मिला 3 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, उसको वापस से कैपिटल डी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो आपका हो जाएगा 3 लैम्बडा बाई स्मॉल डी। चलो ये समझ में आया भैया? यस सर। तो अभी आपके पास लैम्बडा भी है। लैम्बडा जो है ना वो 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। स्मॉल डी 0.2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। मैंने है ना मीटर में कन्वर्ट कर दिया सब कुछ। तो 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5 बचेगा एंड 10⁻³ बचेगा रेडियन। You can write this as this way, 0.0075 radian. So this is your answer. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द माइक्रोस्कोप नहीं चलेगा। 16 वाला मैंने कर दिया। 17th क्वेश्चन चलो। तो क्या लिखा है भैया, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स थ्रू स्क्रीन इज डबल्ड, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ फ्रिंज? फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है भैया? मुझे कोई बताएगा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? Lambda d by small d. लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी इज हाफ्ड, मतलब ये डिनोमिनेटर में हाफ किया एंड कैपिटल डी को डबल करते हैं। तो फ्रेंड्स उसको डबल किया मतलब न्यूमरेटर डबल हुआ एंड डिनोमिनेटर हाफ हुआ, तो रिजल्ट आपका क्या होगा? 2 times. कितने टाइम्स? 4 times. 4 टाइम्स। सही बात है। तो क्या आंसर आएगा आपका? बिकम्स 4 टाइम्स इज द आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. सो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है उसके जो मैंने अलग अलग टॉपिक के बेस पे यहाँ पे सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक है, मेरा ऐसा ट्राई होता है कि मेरे जो एमसीक्यू मैं आपको देता हूँ उसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आ जाए, तो ये मैं करवाता हूँ। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एमसीक्यू दिए होते हैं। तो ये जो मुझे जो करवाना था वो मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू सॉल्व करके लाना है थर्सडे को कंपल्सरीली। फ्रेंड्स आप लोग देखो थोड़ा काम करो तो हमारे लिए वो ही मोटिवेशन होता है।